Hello guys, welcome to LRDI series by For All Prep. So guys, today we will be discussing this CAT 2017 LRDI set, which is a fast food joint set, right? And this set is pretty much easy set, means this set will not require that much efforts of your brain to solve, right? So in CAT also, you have to pick these kind of easy sets and start solving it. Okay, and in order to score higher, what can I say? But you have to learn the art of picking the set. Okay, so let us start reading this set and start analyzing this set, what this set is saying about. So this set is saying that a Healthy Bites is a fast food joint serving three items. Okay, so Healthy Bites is a fast food joint serving three items. So Healthy Bite is serving three items, which is burger, fries, and ice cream. It has two employees, Anish and Bani. Okay, who prepare the items ordered by the clients. Okay, preparation time. Okay, burger requires 10 minutes to make, ice cream requires 2 minutes to make, and fries requires 5 minutes to make. Okay, so burger and ice cream will require the assistance of man to make. Okay, but the fries. Okay, fries do not require an assistance of man. It just can be made in a machine. So while making fries, we can make burgers and ice creams also, right? So fries work is simultaneous. So the fries do not need an employee to constantly attend to it. Okay, this is what I have said also. So what is given in the second paragraph? Healthy Bites wishes to serve the orders as early as possible. Okay, this is the condition, means we have to serve the order as early as possible. First is this. Okay, means we will not we would avoid letting employees to sit idle, according to this statement, right? So what is given in the next line, which is the individual items in any orders are served as when ready. Okay, however, the orders is considered to be completely served only when all the items of that order are served. Okay, this line is important. Okay, what is the criteria of completely served? Okay, when all the items of that order are served. Okay, we have to serve all the items. That is the condition for completely served. Okay, now what is given in this table? What is given in this table? That there are three clients. First come at 10 o'clock, second come at 10:05, and third at 10:07, right? And they are ordering different things. Okay, so let us start directly to solve this set. But first, let us write what this set has talked about, right? So there is a Healthy Bites company, and this company is serving three items. First is burger, second is ice cream, and third one is fries, right? Burgers require 10 minutes to make, and in fact it requires the assistance of a man, right? Ice cream requires 2 minutes to make and requires assistance of a man, but fries require 5 minutes to make and do not requires assistance of a man. Instead it requires machine, right? This is given in the first paragraph. Okay, now let us start solving this set. And there are two, obviously there are two employees. First is Anish and Bani. We will use them. So first question is saying that assume that only one client order can be processed at any given point of time. Okay, so Anish and Bani cannot start preparing a new order while the previous order is being prepared. Okay, so we have to keep in mind this condition. Okay, means in order to start the order of a second client, we have to first completely serve the order of first client. That is what given in this paragraph. Okay, so let us start solving. So first client comes at 10 o'clock, right? First client comes at 10 o'clock. Okay, and we have to tell that at what time client 1 will be completely served. Okay, so first client comes at 10 o'clock, right? Now I am making a column of burger, ice cream, and fries. Okay. सो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ इजी सेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 10 o'clock पे आया ना, तो हम क्या करेंगे, बर्गर जो है हम एक एम्प्लॉय को दे देंगे, जैसे अनीश हो गया, राइट? एंड फ्राइज तो हमारा मशीन में ही बनता है, राइट? इसको हमारा एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं। आइसक्रीम हम बानी को दे देते हैं, चलो किसी भी एक को दे देंगे, ठीक है?
तो बर्गर जैसे ही हमारा हमने इसको दिया, तो ये हमारा बर्गर कब रेडी करके देगा? बर्गर को 10 मिनट्स लगते हैं, तो ये हमारे 10 में रेडी करके दे देगा बर्गर, राइट। आइसक्रीम को 2 मिनट्स लगते हैं, तो ये 10 में रेडी कर देगी, ठीक है। फ्राइज को 5 मिनट्स लगते हैं, राइट। 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। ओके। सो ओवरऑल सेंस में हमारा जो क्लाइंट वन है वो कंप्लीटली सर्व्ड कब हो रहा है? जब उसको एक बर्गर, एक आइसक्रीम और एक फ्राइज मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे लेट क्या चीज बन के आ रही है? बर्गर बन के आ रहा है। तो फाइनली क्या होगा कि ट्रे में आइसक्रीम और फ्राइज आ चुके होंगे, फाइनली बर्गर आएगा कंप्लीटली, वो क्लाइंट वन को सर्व हो जाएगा, राइट। तो क्लाइंट वन को कंप्लीटली सर्व कब होगा? 10 पे। ओके। और यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा ही यही था, क्लाइंट वन को कब कंप्लीटली सब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा एफर्ट नहीं लगा। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अज्यूम दैट ओनली वन क्लाइंट ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एट एन, ओके, दिस कंडीशन has been already highlighted in the previous question, so that is same. So we have to read just this line. At what time is the order placed by client 3 completely served? Okay, so keeping in mind this condition, that before moving to the next client we have to serve the order of first previous client. Okay, so this condition we have to keep in mind. So अब क्या होगा ना, क्लाइंट वन को 10 पे मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि 10 5 पे हमारा सेकंड क्लाइंट आ गया था, तो इसका मतलब, और 10 7 पे हमारा थर्ड क्लाइंट आ गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे मेंशन है ना, इसका मतलब कंपनी ने ऑलरेडी सेकंड क्लाइंट एंड थर्ड क्लाइंट के ऑर्डर्स ले लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इनके ऑर्डर्स प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो जो सेकंड क्लाइंट का ऑर्डर है, फर्स्ट क्लाइंट के ऑर्डर के बाद ही शुरू हो सकता है, क्योंकि कंडीशन में दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड क्लाइंट का ऑर्डर जो है वो 10 से बनना शुरू होगा, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्लाइंट C1 का ऑर्डर बनना शुरू हो गया, यहाँ पे क्लाइंट 2 का ऑर्डर बनना शुरू हो गया, राइट। तो अब मैं अगर बोलूँ कि 10 पे रेडी हो गया, राइट। अब सेकंड क्लाइंट ने ऑर्डर दिया 2 पोर्शन ऑफ राइस एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम, तो 10 पे बन गया, ठीक है। अब किसी को भी कुछ भी दे दो, किसी को भी कुछ भी दे दो, फॉर एग्जाम्पल किसी को भी कुछ भी दे दो। अभी फर्स्ट केस में बर्गर अनीश ने बनाया, सेकंड क्या बोल आइसक्रीम बानी ने बनाई। अब क्या है कि फ्राइज तो ऑलरेडी मशीन में ही बनने हैं ना, फ्राइज तो ऑलरेडी मशीन में ही बनने हैं, तो 10 से शुरू होगा, 5 मिनट्स का टाइम लेगा, तो 10 15 पे हमारे फ्राइज बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब आइसक्रीम ही था, अब 10 के बाद आप चाहे अनीश को दे दो, चाहे बानी को दे दो, किसी को भी दे दो 10 के बाद। मेन बात यह है कि वो चीज, फॉर एग्जांपल हम चलो बानी को ही दे देते हैं, ठीक है। तो मेन बात यह है कि वो 2 मिनट्स का टाइम लेगी, तो 10 12 पे, और बर्गर ऑर्डर हुआ ही नहीं था, मीन्स उतने टाइम के लिए खाली बैठा रहेगा अनीश। तो फाइनली सेकंड क्लाइंट का जो ऑर्डर है वो कब सर्व हो जाएगा? 10 15 पे सर्व हो जाएगा ना। इस क्लाइंट टू का ऑर्डर 10 15 पे कंप्लीटली सर्व हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले आइसक्रीम उसकी प्लेट में आ चुकी होगी, राइट। फिर 10 15 में लास्ट में फ्राइज आएंगे और उसको कंप्लीटली सर्व कर देंगे हम, क्योंकि हमें एज अर्ली एज पॉसिबल सर्व करना है। ओके। फिर उसके बाद हमारा क्लाइंट 3 का कब शुरू होगा? जब हमारा क्लाइंट 2 का फिनिश हो जाएगा। क्लाइंट 3 ने ऑर्डर ऑलरेडी 10 7 पे दे ही दिया था, तो हम शुरू कर सकते हैं, राइट। तो अब 10 15 से क्लाइंट 3 का ऑर्डर प्रिपेयर होना शुरू होगा, ठीक है। तो क्लाइंट 3 ने ऑर्डर दिया था 1 बर्गर एंड 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज, तो फिर से 10 50 से फ्राइज जो है 10 20 तक का टाइम लेगा, ओके। 10 20 तक का टाइम लेगा, 5 मिनट्स, और 1 बर्गर। अब आप किसी भी एक को दे दो, फॉर एग्जांपल चलो अनीश को ही दे देते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने बानी से काम करवा दिया था, अभी अनीश को ही दे देते हैं। किसी को भी दोगे आंसर तो सेम ही रहने वाला है, बाकी दूसरा वाला खाली ही बैठेगा। तो 10 मिनट्स के लिए 10 25, ओके। 15 से शुरू किया, 10 मिनट्स बर्गर के लगता है 10 25, और आइसक्रीम तो इसने दिया ही नहीं था। तो ओवरऑल सेंस में सबसे लेट टाइम कौन सा है? 10 25 है, इस टाइम पे क्लाइंट 3 सर्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा 10 25 इसका आंसर होता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा आपको। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ अभी के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज द एम्प्लॉयज आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर्स एट अ टाइम, ओके। अच्छा, अब ये कंडीशन नई वाली हाईलाइट कर रहा है कि एम्प्लॉयज को ना अब मल्टीपल ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हैं एट अ टाइम, बट द प्रेफरेंस बट द प्रेफरेंस वुड बी टू फिनिश द ऑर्डर्स ऑफ क्लाइंट्स हु प्लेस्ड देयर ऑर्डर्स अर्लियर, राइट। तो मतलब अब मल्टीपल ऑर्डर्स आप प्रोसेस कर सकते हो। जैसे हम पीछे हम एक को बर्गर दे रहे थे, राइट, तो हमारा सेकंड वाला खाली बैठ जा रहा था, ओके। और एक को आइसक्रीम दे रहे थे तो फर्स्ट वाला खाली बैठ जा रहा था, राइट।
अब हम ऐसा नहीं होगा, अब अगर जो खाली बैठा रहेगा उसको हम नेक्स्ट कस्टमर का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन बस यही है कि पहले वाले कस्टमर का पहले बनाना है, राइट? अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट कस्टमर ने भी फ्राइज बोले हुए, सेकंड कस्टमर ने भी फ्राइज बोले हुए, तो ये ऐसा नहीं है कि आप सेकंड कस्टमर का पहले बनाना शुरू कर दोगे। ओके, आपको फर्स्ट कस्टमर का ही पहले बनाना पड़ेगा फ्राइज, बस यही बोला है। ठीक है ना? तो एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट टू कंप्लीटली सर्व्ड? तो कंप्लीटली सर्व कब हो जाएगा क्लाइंट टू? तो चलो इसको फिर से फ्रेशली बनाते हैं कि हमारा बर्गर का ऑर्डर आना था, आइसक्रीम का ऑर्डर आना था और फ्राइज का ऑर्डर आना था। ठीक है, 10:10 पे, सॉरी 10 o'clock पे हमारा क्लाइंट वन आके ऑर्डर देता है। ठीक है, तो बर्गर को बनने के लगेंगे 10 मिनट्स, तो 10:10 पे कंप्लीट होगा। आइसक्रीम को बनने के लगेंगे 2 मिनट्स एंड फ्राइज को बनने के लिए लगेंगे 10 5 मिनट्स। ओके, मीन्स 10 5 पे फ्राइज बन के तैयार हो जाएगा, तो 10 5। ओके, तो अब ओवरऑल सेंस में हमें पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे ओवरऑल सेंस में कि हम बोल दे रहे थे 10:10 में क्लाइंट वन सर्व होगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पे 10:10 में ही क्लाइंट वन सर्व होगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि क्लाइंट टू जो है हमारा 10 5 पे आ गया था। क्लाइंट टू हमारा 10 5 पे आ गया था। ठीक है, और उसने क्या किया, क्लाइंट टू ने क्या क्या ऑर्डर किया था? क्लाइंट टू ने ऑर्डर किया था 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। मीन्स उसने फ्राइज एंड आइसक्रीम ऑर्डर की थी। ठीक है, तो 10 5 पे आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ कि अब हम नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, अभी हमारे लिए 8 मिनट ये खाली बैठी हुई है। देखो, अगर मेरा क्लाइंट वन जो है 10:10 पे सर्व होगा, ठीक है ना, क्योंकि बर्गर हमारे सबसे लास्ट में आ रहे हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था कि 10:10 में सर्व हो जाएगा। तो अब 10:10 तक हमारी जो, फॉर एग्जांपल ये अनीश ने बनाया था, राइट, ये बानी ने बनाया था, राइट, तो बानी जो है 10:10 के लिए 8 मिनट्स के लिए खाली बैठी हुई थी, राइट। तो अब हम सेकंड ऑर्डर के लिए बानी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब बानी क्या है, मल्टीपल ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकती है। तो अब बानी को खाली नहीं बैठने देना है, यही कंडीशन 3 है। ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर्स प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो 10 5 पे कस्टमर आता है, तो बानी को हमने क्या किया, 10 5 पे दे दिया, राइट। जब बानी को हमने 10 5 पे दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, बानी क्या है, 3 मिनट्स जो है आइडल बैठी रही। ठीक है ना, तो ये तो लगातार काम कर रहा था 10:10 तक। 10 5 पे हमने ऑर्डर लिया, बानी 3 मिनट्स के लिए आइडल बैठी रही, और 10 5 पे हमने बानी को दिया, क्योंकि कस्टमर ही हमारा 10 5 पे आया है। तो 10 5 पे हमने बानी को दिया फिर से क्या चीज, आइसक्रीम, आइसक्रीम मांगा है ना, आइसक्रीम दे दिया 10 5 पे, राइट। तो ये 10 7 तक, क्योंकि 2 मिनट्स आइसक्रीम बनने के लिए लग रहे हैं, तो 10 7 तक बानी जो है हमारी आइसक्रीम रेडी कर देगी। ओके, और फिर से बानी अगेन 10 10 तक 3 मिनट्स के लिए, इस केस में अभी क्योंकि हमें थर्ड कस्टमर का हमें पता नहीं है अभी, जबकि आ चुका था थर्ड कस्टमर, बट अभी मैं फिलहाल के लिए बोलूंगा कि ये आइडल बैठी हुई थी, क्योंकि जब तक हमें सेकंड कस्टमर तक का पूछा हुआ है तब तक मैं उस केस के लिए बोलूंगा कि ये 3 मिनट्स के लिए आइडल बैठी हुई थी, राइट, क्योंकि 10 10 पे हमारा क्लाइंट वन सर्व हो रहा है। ओके, अच्छा, अब एक चीज के लिए और बताओ कि फ्राइज जो है 5 मिनट्स बनने के लग रहे हैं, तो फ्राइज भी ऑर्डर किया ही था, तो फ्राइज जो है 10 10 तक बन के रेडी होंगे। ओके, तो हमारा जो सेकंड कस्टमर है, और बर्गर सेकंड कस्टमर ने ऑर्डर करा ही नहीं था, तो सेकंड कस्टमर है वो हमारा कब सर्व हो जाएगा ओवरऑल सेंस में, 10 10 में सर्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सेकंड कस्टमर? तो अब एक बात बताओ, कस्टमर वन भी हमारा ना सर्व हो जा रहा है 10 10 में, कस्टमर टू भी हमारा जो है सर्व हो जा रहा है 10 10 में। देखो, जब हमने मल्टीपल ऑर्डर्स प्रोसेसिंग लगाई, तो 10 10 में हमारे 2 कस्टमर सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 कस्टमर्स जो है सर्व हो जा रहे हैं हमारे। ठीक है, तो सेकंड कस्टमर भी जो है हमारा वो 10 10 में ही सर्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, सपोज द एम्प्लॉयज आर अलाउड टू प्रोसेस, ओके, लास्ट कंडीशन दे रखी है यहाँ तक, ऑल्सो एज्यूम दैट द फोर्थ क्लाइंट केम इन ओनली एट 10:35 बिटवीन 10 से ये, फॉर हाउ मेनी मिनट्स इज एक्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉयज आइडल। तो अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो फोर्थ क्लाइंट था ना, वो 10:35 पे ही आया है। इसका मतलब 10 से 10:30 के बीच में 3 ही क्लाइंट्स थे, तो हमारा डेटा उसने कन्फाइन कर दिया कि हमें और क्लाइंट का नहीं सोचना है। ठीक है, तो 10 से 10:30 तक हमें 3 क्लाइंट्स थे। अब कितने मिनट्स के लिए हर एक कोई एक एम्प्लॉय आइडल बैठा हुआ था, तो चलिए इसको ना फिर से फ्रेशली तैयार करते हैं। देखो, मैं बनाता हूँ यहाँ पे डेटा बर्गर का, राइट, मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेटा आइसक्रीम का, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेटा फ्राइज का। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम, य- यहाँ पे बोल देता हूँ कि पहले अनीश बनाना शुरू कर रहा है, फिर बानी। ठीक है, तो 10 10 पे हमारा क्लाइंट वन आता है, ओ सॉरी 10 o'clock पे हमारा क्लाइंट वन आता है। ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेसिंग अब अलाउड है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ध्यान से देखना। ठीक है,
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसको ध्यान से देखना बस। क्या होगा कि हमने बर्गर जो है अनीश को दिया, तो उसने क्या करा, 10-10 पे रेडी करके दिया हमको बर्गर, क्योंकि 10 मिनट्स लग रहे थे बर्गर के। आइसक्रीम के 2 मिनट्स लग रहे थे, 10-2 पे रेडी करके दे दी। फ्राइज के 5 मिनट्स लग रहे थे, तो 10-5 पे हमारे फ्राइज भी रेडी हो जाएंगे। ओके। क्या होता है, देखो ध्यान से। सेकंड कस्टमर कब आया? सेकंड कस्टमर कब आया? सेकंड कस्टमर आया 10-5 पे। ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट कस्टमर जो है ना, कब सर्व हो जाएगा? 10-10 पे सर्व होगा। ठीक है। सेकंड कस्टमर 10-5 पे आ गया है, तो 10-5 के बाद हमारे जो फ्राइज है, वो भी, फ्राइज मशीन है वो भी खाली है, मतलब उसको भी हम यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम जो बना रहा था पर्सन, वो भी खाली है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट बर्गर जो बना रहा था वो अभी खाली नहीं है, क्योंकि वो 10-10 पे खाली होगा। ठीक है। तो सेकंड केस में जो क्लाइंट 2 था, उसने ऑर्डर दिया था आइसक्रीम एंड फ्राइज का। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 10-5 पे अगर रेडी हो गया, ठीक है, खाली हो गया, तो 10-5 से लेकर 10-10 तक, ठीक है ना, हमारे फ्राइज भी रेडी हो गए कस्टमर 2 के। राइट। अब एक बात बताओ, ये 10-5 पे कस्टमर आया था, तो 3 मिनट्स के लिए ये आइडल बैठी हुई थी। राइट। 3 मिनट्स के लिए आइडल बैठी हुई थी, खाली बैठी हुई थी। उसके बाद 10-5 पे ऑर्डर आया, तो इसने तुरंत आइसक्रीम बनानी शुरू कर दी। तो इसने 10-7 तक आइसक्रीम बना दी। राइट। क्योंकि आइसक्रीम बनने के 2 मिनट्स लग रहे थे, तो 10-5 पे शुरू होगा, तो 10-7 पे खत्म हो जाएगा। बर्गर से इसने ऑर्डर करे ही नहीं थे। राइट। तो हमारा सेकंड कस्टमर भी जो है, वो सर्व हो जाएगा 10-10 पे। इस पॉइंट पे ना, 10-10 वाले पॉइंट पे कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2 जो है, दोनों सर्व हो जाएंगे, क्योंकि देखो इनके सबके ऑर्डर खत्म हो गए हैं। ठीक है। अब कस्टमर 3 का एक बात बताओ मेरे को। कस्टमर 3 जो है 10-7 पे अपना ऑर्डर दे दिया था। ठीक है। तो देखो, जस्ट देखना, 10-7 पे हमारा अनीश खाली नहीं है, क्योंकि वो तो 10-10 पे ही बनाएगा। राइट। हमारी बानी खाली है 10-7 पे, और क्या हमारी मशीन खाली है 10-7 पे? मशीन भी खाली नहीं है 10-7 पे, तो अब हम अभी हम फ्राइज भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम फ्राइज भी नहीं बना सकते हैं। तो अभी केवल बानी खाली है, तो क्लाइंट 3 ने ऑर्डर दिया था बर्गर एंड फ्राइज का। ओके। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बानी को जो है बर्गर बनाने के लिए दे देते हैं। राइट। क्योंकि 10-7 पे आ चुकी है, तो बानी को 10 मिनट्स लगेंगे बर्गर बनाने के, तो 10-17 तक वो बर्गर बना देगी। राइट। अब जैसे ही 10-17 में क्या बोलते हैं, बानी बर्गर बना के मतलब अपना काम पूरा कर देगी, तो उस टाइम के लिए क्या, जो अनीश था वो खाली नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि अनीश ऑलरेडी 10-10 में खत्म करके बैठा हुआ था अपना काम। तो 10 मिनट्स के लिए, 7 मिनट्स के लिए जो है अनीश जो है आइडल बैठा रहेगा, खाली बैठा रहेगा। राइट। और मशीन जो है 10-10 में हमारा सेकंड क्लाइंट का फ्राइज बना के रेडी कर दिए थे उसने, तो उसके बाद 10 से 10-17 के बीच में वो थर्ड क्लाइंट के भी फ्राइज को रेडी कर देगी। राइट। तो 10-15 तक थर्ड क्लाइंट के फ्राइज को रेडी कर देगी। राइट। तो अब इसमें क्या है कि हमारे जो ये चीज है, ये चीज भी कंप्लीटली जो सॉल्व हो चुकी है, कि इसमें हमारा क्या होगा, ओवरऑल सेंस में 10-17 में क्लाइंट 3 भी सर्व कर देंगे हम। ठीक है। तो अब इसमें बोला है 10 से 10:30 के बीच में एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय कितने मिनट्स के लिए आइडल है। तो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे 10 से 10 के बीच में, क्योंकि क्लाइंट 1 जो है 10-10 तक सर्व हो रहा है। ठीक है। कौन खाली बैठा हुआ था, देखो, पहले 10 से 10 के बीच में ये तो खाली अनीश नहीं बैठा हुआ है। बानी जो है 10 से 10:02 तक उसने काम किया, 3 मिनट्स के लिए आइडल बैठी हुई थी, तो ये 3 मिनट्स हो गए। ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि मुझे ऐड कौन से, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 10 से 10 के बीच में देखो एग्जैक्टली जो है, बानी यहाँ पे खाली बैठी हुई है 3 मिनट्स के लिए। ओके। और मशीन है ये, तो इसका तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। ठीक है। तो 3 मिनट्स जो है एग्जैक्टली वन कोई खाली बैठा हुआ है। ठीक है। सेकंड केस में देखो, सब मामला बिल्कुल पैक्ड था, 7 मिनट के लिए आइडल बैठा हुआ था ये अनीश। ठीक है ना। तो ये अनीश एग्जैक्टली 7 मिनट्स के लिए आइडल बैठा हुआ था, वो कौन सा था, 10-10 से लेकर 10-17 तक का जो टाइम था, उसमें अनीश खाली बैठा हुआ था। राइट। और इसमें बानी फुली इंगेज थी, तो ये 7 हो गया। राइट। इसके बाद 10-17 में तो तीनों कस्टमर्स हमारे सर्व हो चुके हैं, तो एग्जैक्टली कितने मिनट्स के लिए कोई एक एम्प्लॉय खाली बैठा हुआ था, 10 मिनट्स के लिए। राइट। तो इसका आंसर 10 हो जाता है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 10:70 से 10:30 के बीच में हमने क्यों नहीं लिया। तो देखो भाई, 10:17 तक हमारे तीनों कस्टमर्स जो थे वो सर्व हो चुके थे। ठीक है ना। अब क्या है कि 10:17 से 10:30 के बीच में दोनों ही जो हमारे अनीश और बानी दोनों ही जो थे हमारे एम्प्लॉय, वो हमारे खाली बैठे हुए थे, मतलब आइडल बैठे हुए थे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन पूछी हुई है एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉय खाली बैठना चाहिए। राइट। तो उसमें हमने एग्जैक्टली वन का केस लिया। ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।